बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। The today's lecture is from Science of Grade 6 and the chapter which is under discussion is the environment and the interaction of its components. It's our third lecture from this chapter and we are going to study the relationship between biotic and abiotic components of the environment. What are these two types of components? You are well versed with these two types. Now we will study how these components depend upon each other and facilitate each other. And what's the benefit when these two types of components work in collaboration and coordination? How does their collaboration and coordination affect the environment? All these questions will be answered in this lecture. The SLO that will be achieved through this lecture is describe the relationship between biotic and abiotic components of the environment. The relevant topic you will find on your textbook at page 44 and the next part is on page 45 under the heading of relationship between biotic and abiotic components of the environment. It's heading number 4.3. You are not required to memorize or cram the whole paragraph, but you just have to understand the concept, the nature of relation between these two types of components. You just have to understand that what is the effect abiotic and the biotic components impose upon each other and what will happen if any of the component will be excluded out of the environment. So just take the concept and reproduce it in your own words. All the biotic components, biotic means living organisms, just as producers, consumers and herbivores. Producers, consumers, decomposers depend upon abiotic components for their basic needs like food, shelter and breathing. Here we will understand the concept with the help of two examples. First of all, we will take the example of plants because plant is also a living organism. So according to this statement, it should depend upon abiotic components such as light, temperature, air, water for its survival. Let's see. Here is a plant. All you know that plants prepare their own food by the process of photosynthesis. To prepare their own food, they need sunlight. Sunlight is an abiotic component. Then they need carbon dioxide gas to prepare their food, that is glucose. Carbon dioxide comes from air and carbon dioxide is also abiotic component. Then plants also need water to maintain their turgor pressure. If the plants lose their turgidity, the photosynthesis or the food making process ultimately stop. And the water, you know, that is an abiotic component. Besides these three, plants need soil for their need of nutrients. And soil is also an abiotic component. Sunlight, carbon dioxide that comes from air, soil, water, all are abiotic components. And without any of these components, plants could not prepare their own food. And if plants do not prepare their food, they would ultimately die. So hence it's proof that plants depends upon abiotic components for food, shelter and breathing. As plants are autotrophic, so they prepare their own food using these components. Soil give them anchorage and hence provide them shelter in a way.
and carbon dioxide helps plant in breathing. Let's take another example of an animal. Animals, as you can see in the picture, depends upon abiotic components for their life as well. They take food from the environment. They do their work in the presence of sunlight. Sunlight also provide them suitable temperature to survive. In the presence of suitable temperature, body of animals functions properly. If there is too much cold or too much hot, animals could not survive. Animals need air for their survival. Air gives them oxygen. Oxygen is the life gas that they use in breathing and then in respiration. By using air, animals' body produce energy to do work. This sunlight and air are also abiotic components. We have studied that plants use the abiotic factors such as carbon dioxide, water, and energy from the sun. These plants are eaten by some herbivorous organisms and parasites, and this is also have been studied in the previous lectures that plants are eaten by many animals such as goat, camel, deers, small animals, rodents, etc. Plants also depend on soil for their mineral and nutrient requirements and support. Hence, plant being a biotic component interact with the abiotic components. The abiotic components and biotic components influence each other. For example, the type of soil and the climatic conditions determine the type of flora and the fauna found in that area. Flora is the collection of plants in a particular area, and the fauna is the collection of animals in a particular area. The essential abiotic components of an ecosystem are water, air, energy, nitrogen, and soil minerals. The next point that we will discuss is the biotic components and abiotic components influence each other. For example, the type of soil and the climatic conditions determine the type of flora and fauna found in that area. It means that the conditions and the nature of these abiotic components will decide which type of plants and animal will reside there. We will study this or discuss this point with the help of this chart. We have different types of soil and different types of climatic conditions, and now we'll study how these types and the climatic conditions affect the flora and fauna in particular area. If the soil will be sandy, it means it doesn't contain many nutrients. So the plants growing in sandy soil will not get enough nutrients and would not be able to get enough anchorage because sandy soil is porous. अब ये sandy soil होगी ये porous होगी और porous होने की वजह से ये प्लांट को एंकरेज में हेल्प नहीं करेगी. दूसरी बात क्या है कि सैंडी सॉइल में लेसर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो प्लांट्स इस सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होंगे. और अगर सैंडी सॉइल के साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्राई और हॉट हों, यानी हॉट होने का मतलब ये है और ड्राई होने का मतलब ये है कि लेसर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, और लेसर अमाउंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि प्लांट में अगर नॉर्मल प्लांट की बात करें तो उसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अल्टीमेटली प्लांट अपनी टर्जिडिटी खो देगा और टर्जिडिटी ख़त्म होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में जिसमें सॉइल सैंडी हो और क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई और हॉट हो तो उस वक्त वहाँ पाए जाने वाले प्लांट में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. जैसा कि कैक्टस में हम देखते हैं कि कैक्टस का फ्लैशी होता है, जूसी होता है, जिसमें वाटर स्टोरेज एबिलिटी ज़्यादा होती है. इसके अलावा वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो भी नॉकटर्नल होंगे, यानी वो रात के वक्त जागने वाले एनिमल्स होंगे. नॉकटर्नल एनिमल्स क्योंकि रात को बाहर निकलते हैं, लिहाजा वो दिन के वक्त जो ड्राइनेस और हॉटनेस है सनलाइट की वजह से वो उसको बियर नहीं कर सकते. लेकिन रात को जब सनलाइट नहीं होती और क्लाइमेट रिलेटिवली कोल्ड होता है तो ये नॉकटर्नल एनिमल्स बाहर आकर अपने बिलों से बाहर आकर अपने घरों से बाहर आकर अपने फूड के लिए सर्च आउट करते हैं.
इसी तरह अगर टाइप ऑफ सॉइल लोमी या क्ले होगी तो इसका क्या मतलब है, इस सॉइल में कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है। कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होने की वजह से वो प्लांट एंकरेज में फेवर करेगा, यानी प्लांट को मजबूती से ज़मीन में गाड़े रखेगा। और क्ले सॉइल में और लोमी सॉइल में हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होती है। और अगर इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट हों तो मॉडरेट का क्या मतलब है कि उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा जिस पर मैक्सिमम प्लांट ग्रो कर सकेंगे। मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, यानी उस ऐसे इन्वायरमेंट में पानी भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसी सूरत में कौन सा फ्लोरा और फौना प्रेजेंट होगा, वहाँ पे फूड क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होंगी। ऐसी ज़मीन में, ऐसे इन्वायरमेंट में फूड क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होंगी और फिर ये रिच एनिमल डाइवर्सिटी भी इसके साथ होगी, क्योंकि जहाँ प्लांट्स होंगे वहाँ एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे। आपने देखा है कि जिस जगह पे फसलें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे जानवरों की स्पीशीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ सॉइल में अगर सॉइल एसिडिक हो जाए, उसका एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाए, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट को फेवर करेगा। इसके साथ साथ अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस वेट और कोल्ड हों, यानी बारिशें बहुत ज़्यादा हों, तो ऐसी सूरत में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ वैरायटी पाई जाएगी। प्लांट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी और एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी। इसके बरक्स अगर सॉइल की बजाय स्नोई एनवायरनमेंट हो, यानी ज़मीन पे स्नो ही स्नो हो, सॉइल ना हो, या अगर सॉइल हो तो वो फ्रोज़न फॉर्म में हो, तो क्या होगा कि वहाँ पे लेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी। और लेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स कम ग्रो करेंगे। और वहाँ पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई और कोल्ड भी हों, क्योंकि स्नो है तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट कोल्ड होगा, तो कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे तमाम हर तरह के एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकेंगे और वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो बहुत ही कम होगी। इसी तरह वहाँ पे एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत कम होगी, क्योंकि हर प्लांट इतनी एक्सट्रीम कोल्ड को बेयर करने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो आपने देखा कि हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ये तमाम के तमाम एबियोटिक फैक्टर्स हैं। टाइप ऑफ सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस ये दोनों एबियोटिक हैं। तो कैसे इन्होंने हमारे फ्लोरा यानी एनिमल्स और प्लांट्स को किसी जगह में अफेक्ट किया। जैसे जैसे हमारे एबियोटिक फैक्टर्स की कंडीशंस चेंज होती हैं, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी भी किसी पर्टिकुलर एरिया में चेंज होती चली जाती है। हम किसी भी जगह पे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को स्टडी करने के लिए उनके एबियोटिक फैक्टर्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस सारे लेसन को समराइज़ करें तो ये हमारे पास एक तरह से फूड चेन बन जाती है, एक चेन बन जाती है जिसमें एबियोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्ट करते हैं और बियोटिक कंपोनेंट्स एबियोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्ट करते हैं। एक दफ़ा इसे रीडिंग कर लेते हैं। द एनर्जीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, energy enters in the ecosystem through the plants by the process of photosynthesis, because plants use sunlight to make their food. This process also takes in carbon dioxide and water. We have studied that plants also need carbon dioxide and water to prepare their food. Animals that feed on these plants play a major role in the movement of matter and energy through the system. These plants and animals are then broken down by the decomposers. अब जब एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो जाते हैं, डाइड ऑफ हो जाते हैं या उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ज़मीन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई उनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के नतीजे में जो इनकी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, वो दोबारा एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट दोबारा इन मिनरल से रिच अप हो जाती है।
Breakdown from the microorganisms releases nitrogen from dead matter into the soil. Hence, abiotic and biotic components interact and work together in an environment that is best for all the living organisms. अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर कोऑर्डिनेशन ना करे या अपना रोल इफेक्टिवली प्ले ना करे तो होल इकोसिस्टम विल बी इफेक्टेड. इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये जो सनलाइट है ये आपको दो तरह के आपको एक पिक्चर में दो सेक्शंस दिखाए गए हैं. एक तरफ एबियोटिक कंपोनेंट्स हैं और दूसरी तरफ सारे बियोटिक कंपोनेंट्स हैं. अब सनलाइट एबियोटिक कंपोनेंट है, उसकी वजह से प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर करते हैं. यही फूड एनिमल्स भी खाते हैं, यही फूड डिकम्पोजर्स भी यूज़ करते हैं और यही फूड ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं. अब वो जो प्लांट्स हों या फिर वो एनिमल्स हों, जब उनकी बॉडी डिके होने लगेगी यानी वो डेड हो जाएंगे तो डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे और डिकम्पोजिशन के नतीजे में इन्हें क्या मिलेगा, एक तो हीट एनर्जी वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी, दूसरा इनको एसेंशियल मिनरल्स मिल जाएंगे. एनवायरनमेंट में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे जिन्हें लेके प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया था वो डिकम्पोजिशन के नतीजे में वापस प्लांट्स को वापस एनवायरनमेंट को चले जाएंगे. इसी तरह जो गैसेस यूज़ की थी प्लांट्स ने भी और एनिमल्स ने भी अपने सर्वाइवल के लिए, वो गैसेस भी एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दी जाएंगी. ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो गैस प्लांट्स के लिए लाइफ गैस है वो एनिमल्स एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं और जो गैस एनिमल्स के लिए लाइफ गैस है वो प्लांट्स एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं. लिहाजा गैसेस का भी एक साइकिल एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली चलता रहता है. इसी तरह वाटर भी एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है. कभी प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, वो वाटर एनिमल्स यूटिलाइज कर देते हैं और रेन वाटर के थ्रू वो पानी रिप्लेनिश कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में. सो ये एक साइकिल कंटिन्यूसली बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स की डिपेंडेंस को शो करता हुआ जारी रहता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक एनवायरनमेंट में के कंपोनेंट्स कैसे नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए अपना इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ. टेक्स्ट बुक का पेज 46 और 47 देखिए. यहाँ आपको टेस्ट एक्सरसाइज 1 मिलेगी. टेस्ट एक्सरसाइज 1 में से आप पार्ट ए सॉल्व करेंगे पहले और पार्ट ए से जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4. ये आपने पहले भी सॉल्व किया था लेकिन ये आज के एसएलओ से भी रेलेवेंट है, सो आप इसे दोबारा सॉल्व कर लीजिए. अ गॉट फॉर इट्स न्यूट्रिशन विल डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ऑल ऑफ दीज. जो भी राइट आंसर है आपने उसका सर्कल फिल करना है. पार्ट बी देखिए. पार्ट बी जो कि पेज 47 पे आपको मिलेगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे. वाइल लिविंग इन अ फॉरेस्ट कैन यू नेम बियोटा ऑफ दैट रीजन. कि अगर आप एक फॉरेस्ट में रह सकते हैं तो आप बियोटा का मतलब है कि वहाँ पे जिस तरह की भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, तो आप क्या एक फॉरेस्ट की लाइफ फॉर्म्स को डिस्कस कर सकते हैं, यानी उसमें किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, क्या आप बता सकते हैं. अब आप आइए अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे जो कि आपको मिलेगी पेज 51 पे. इसमें आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. पैरासाइट इज़ अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और हर्बीवोर. आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक के पेज 45 पे देखिए तो आपको डू यू नो का एक बॉक्स मिलेगा. उस बॉक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा कि पैरासाइट क्या है. क्या वो प्रोड्यूसर है, यानी प्लांट्स में शामिल है, क्या वो एनिमल है, क्या वो डिकम्पोजर है यानी वो डेड मटेरियल को डिकम्पोज करता है, या फिर वो एक हर्बीवोर है यानी प्लांट ईटिंग एनिमल है. जो भी राइट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. फ्रॉम वेयर अ कंज्यूमर गेट इट्स फूड्स एंड एनर्जी. कंज्यूमर अपने फूड और एनर्जी किससे हासिल करता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप इसे दोबारा भी सॉल्व कर लें. होस्ट से, प्रे से, पैरासाइट से, कार्निवोर से. राइट आंसर का सर्कल फिल करेंगे. अब आ जाइए पेज 52 पे और यहाँ पे देखिए पार्ट सी. पार्ट सी में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बियोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अभी आपने इस रिलेशनशिप की मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ फॉर्म देखी, उन तमाम फॉर्म्स को आप एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर में. और फिर आप आ जाएंगे अपने समर पैक की तरफ. समर पैक में पेज 43 ओपन कीजिए जिसमें आपको एसएलओ बेस्ड एमसीक्यू मिलेंगे. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.
फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया इज डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस, टाइप ऑफ सॉइल, नाइट्रोजन इन एयर और टेम्परेचर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप गौर करेंगे तो एक ही फैक्टर है जो बाकी तमाम फैक्टर्स को डिटर्मिन करता है, वो आपने फैक्टर आइडेंटिफाई करके उसे मार्क करना है और फिर उसकी रीज़न बतानी है कि इस जवाब का इंतखाब क्यों किया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हाउ डज एनर्जी एंटर्स इनटू द प्लांट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से आती है, किस प्रोसेस के थ्रू आती है? क्या वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आती है, क्या वो रेस्पिरेशन के थ्रू आती है, या वो इवेपोरेशन के थ्रू आती है, या डीकम्पोजिशन के थ्रू आती है? तो जो भी प्रोसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आप उसको मार्क करने के बाद उसकी रीज़न बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिटर्निंग नाइट्रोजन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू द सॉइल। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वो कौन सा क्रिएचर है, वो कौन सा फीचर है, कौन सा फैक्टर है जो एनिमल्स, डेड एनिमल्स में से, डेड ऑर्गेनिजम्स में से नाइट्रोजन या अदर एलिमेंट्स को दोबारा एनवायरनमेंट में रिटर्न करता है। क्या वो प्रोड्यूसर्स हैं, क्या वो कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, या प्रेडेटर्स हैं? तो आप राइट आंसर चूज़ करने के बाद उसकी रीज़न बताएंगे। पेज 44 ओपन कीजिए, यहाँ भी आपको ऐसे बेस्ड MCQ मिलेंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। प्लांट्स मेक फूड बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एबियोटिक फैक्टर्स एक्सेप्ट। अब फूड मेकिंग में यानी फोटोसिंथेसिस में से इनमें से कौन सा फैक्टर यूज़ नहीं होता? सनलाइट, वाटर, हीट एंड बैक्टीरिया। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत दफ़ा आपने फोटोसिंथेसिस और उसके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा है, सो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप सॉल्व करेंगे। एनिमल्स ब्रीथ टू लिव, विच गैसेज आर इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म। अब एनिमल्स ब्रीद इन कौन सी गैसेज करती हैं? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या बोथ ए एंड बी हैं? सो जो भी गैसेज ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है यानी इनहेलिंग में, इनहेलेशन में इन्वॉल्व है, आपने उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रीज़न बतानी है। अब आ जाइए एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। पेज 46 ओपन कीजिए अपने समर पैक का। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे आप। हाउ डू बियोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद एबियोटिक कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू प्लांट्स। हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी हैं, आपने इनको फॉर्म वाइज डिस्कस करना है, इस केस वाइज डिस्कस करना है कि यानी पॉइंट्स में आप इसका आंसर लिखना है कि एबियोटिक कंपोनेंट्स बियोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं या कैसे उन्हें इफेक्ट करते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करेंगे। पेज 47 पे अपने समर पैक पे देखिए। हाउ कुड ड्रॉट किल द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ड्रॉट क्या है? ड्रॉट है वाटर डेफिशिएंसी फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे अरसे तक अगर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो या बहुत कम हो, इतनी कम कि वो डेली नीड्स को फुलफिल ना कर सके, तो ऐसी कंडीशन को ड्रॉट कहा जाता है। और अगर पानी नहीं होगा तो फूड भी अल्टीमेटली शॉर्टेज में चला जाएगा। तो अगर किसी एरिया में ड्रॉट जैसी कंडीशन है, जैसा कि पाकिस्तान के थर में ड्रॉट जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पे वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स पे इसका क्या असर होगा। आपने थोड़ा सा रिसर्च करें और उसको डिस्कस करें कि अगर पानी और फूड ना हो तो एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप सॉल्व करेंगे। हाउ डिड ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द बियोटिक एंड एबियोटिक एनवायरनमेंट। अब जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक तरह का लिंक क्रिएट कर देते हैं बिटवीन बियोटिक एंड एबियोटिक एनवायरनमेंट। कैसे, हमने डिस्कस भी किया है, आप इसको फॉर्मुलेट करेंगे अपने आंसर को, अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए। या हम अपना एसएलओ अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एबियोटिक फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।